A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. As you know very well, in the last video, we discussed the very important topic of class 11th accountancy, that is in rectification of error. So after completion of the half yearly examination, let's we move to the important chapters related to the related to the upcoming examination, that is an unit test 2, especially the first chapter, which is very important for unit test 2, that is in rectification of error. So लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस बेसिकली यही किया कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में कौन कौन से चैप्टर में डिस्कस करने हैं और वन साइडेड एरर और टू साइड एरर का कॉन्सेप्ट क्या है. So इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे the practical problem related to the rectification of error, and this rectification of error is related to the one-sided error as well as the two-sided error. So let's we discuss about it. Question is rectify the following error. क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया रहेगा कि ये टू साइड एरर है कि वन साइड एरर है, आपको खुद से रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. So the question is rectify the following error, and error are as follows. The first error will be as per the question, that is cash sales to Radhika, that is the cash sales to Radhika rupees 15,000 was shown as receipt of commission in the cash book. Okay, so the first error is cash sales to Radhika rupees 15,000 was shown as a receipt of commission in the cash book. The second error are as follows. The second error is furniture purchased from where? From Rao, Mrs. Rao, Messrs. Rao या Mrs. Rao, furnishing for rupees 8,000 was entered into the purchase book. Okay, this is the second error, and let's we take one more error. The third error will be cash sales to Rajni. Cash sales to Rajni rupees 5,000 recorded in purchase book. So this is a basic question. As you can see that the three errors which are occurred by the accountant due to the insufficiency in knowledge. So one by one we solve this question with the help of you and with the help of me also. So the first question, the first error are cash sales to Radhika. The solution are कैश सेल्स टू राधिका रुपीज 5,000. आप इतना समझो, कैश सेल्स टू राधिका, तो आपने सेल किसको किया? राधिका को. कितने का सेल किया? 15,000 का कैश सेल्स था. सो करेक्ट एंट्री क्या होती अगर हम ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें फर्स्ट के लिए? सो व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? करेक्ट एंट्री मतलब सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? द करेक्ट एंट्री विल बी कैश सेल्स टू राधिका, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट to
sales. What is the amount? That is 15,000. 15,000. This is the correct entry. Was shown as receipt of commission in the cash book. यानी कैश बुक के किस साइड में लिखा गया? कमीशन के. यानी कि हमने कैश बुक में तो शो किया, बट रॉन्ग क्या हो गई? इनकरेक्ट एंट्री क्या हो गई? इनकरेक्ट एंट्री वी पास्ड. हमने गलती से एंट्री क्या पास कर दी? दैट इज अ कमीशन रिसीप्ट मान लिया, उसे रिसिप्ट मान लिया, रिसिप्ट ऑफ कमीशन, जबकि वो क्या है? रिसिप्ट ऑफ सेल, कैश सेल. तो हमने उसको गलती से क्या मान लिया? वी एज्यूम दैट कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन. लास्ट क्लास में आपको याद होगा कि मैंने एकदम क्लियरली समझाया था कि जो करेक्ट होता है, द एंट्री विच आर करेक्ट, दैट इज टू सेल्स. होना चाहिए था टू सेल्स, हमने क्या कर दिया? टू कमीशन. तो गलत है ना, कमीशन क्रेडिट किया. करना किसको चाहिए था? सेल्स को क्रेडिट. तो जब हम एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन, जब हम इसको रेक्टिफाई करेंगे, क्या करेंगे? रेक्टिफाइड एंट्री. तो रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी? दिस इज अ सॉल्यूशन, दिस इज योर मेन सॉल्यूशन. मेन सॉल्यूशन मतलब यही आंसर होगा आपका. गलत क्या था? कमीशन. सही क्या था आपका? सेल्स. तो आप क्या करोगे? जो गलत होता है उसको अपोजिट. यही मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था. When we resolve the two-sided error, जब हम टू साइडेड एरर को रेक्टिफाई करते हैं, तो जो रॉन्ग एंट्री होती है उसको हम लोग क्या कर देते हैं? रिवर्स. और जो करेक्ट एंट्री होती है उसको एज इट इज वैसे ही पेस्ट कर देते हैं. जैसे यहाँ पे रॉन्ग क्या है? कमीशन. रॉन्ग कमीशन है, कमीशन क्रेडिट हुआ है, तो उसको रिवर्स कर देंगे, तो कमीशन विल बी डेबिटेड. कमीशन विल बी डेबिटेड. व्हाट अमाउंट? 15,000. टू सही क्या है? सेल्स. एज इट इज सेल्स को उतारना. सेल्स को एज इट इज उतारना है और कमीशन को रेसिप्रोकल कर देना है, यानी रिवर्स कर देना है. सो दैट योर आंसर विल बी ऑफ द फर्स्ट ट्रांजेक्शन, द रेक्टिफाइड एंट्री विल बी commission account debit to sales. So I hope you will get out, you will get things how we rectify the error. हमें कुछ error ऐसा नहीं है, हमारे पास कोई eraser नहीं है कि we rough it, we remove the errors. With the help of the entry, हम entry की मदद से क्या कर रहे हैं? error को rectify कर रहे हैं. अब आप देख लो खुद, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं. आपने सॉल्यूशन देख लिया. फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या होगा? कमीशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स. अब देखो करेक्ट, इस एंट्री के करने से क्या हुआ? इस एंट्री के करने से आपका कमीशन जो है वो कट हो गया. बचा क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. व्हाट इज द कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स? कट कैसे हुआ? सेम अमाउंट से क्रेडिट है और सेम अमाउंट से क्या हो गया? डेबिट हो गया. वैल्यू भी सेम है तो कट हो गया. बचा क्या? सेल्स. तो करेक्ट एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. तो देखा आपने, दिस इज अ मैजिक. अकाउंट का मैजिक है ये कि आपने इनकरेक्ट एंट्री को रेक्टिफाई एंट्री की हेल्प से क्या कर दिया? करेक्ट बना दिया. आपने क्या किया? कमीशन को डेबिट करके, सेल्स को क्रेडिट करके आपने क्या कर दिया? आपने कमीशन अकाउंट को खत्म कर दिया और उसकी जगह कौन सा अकाउंट प्लेस कर दिया? सेल्स अकाउंट. So you can see that the entry will be cash account debit to sales and your correct entry is also cash account debit to sales. Yes sir. Is that clear? So how we rectify the first entry? आपने देख लिया फर्स्ट एंट्री रेक्टिफाई हो गई. यस, फर्स्ट एरर आपका रेक्टिफाई हो गया. अब हम लोग चलते हैं नंबर सेकेंड. सेकेंड एंट्री को हम लोग रेक्टिफाई करते हैं. सेकेंड को हम लोग क्या करते हैं? एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं. द नंबर सेकेंड, the number second will be furniture purchase from Messrs. Raw, furnishing for rupees 8,000 was entered into the purchase book. हमने परचेस क्या किया? फर्नीचर. और जब हम फर्नीचर परचेस करते हैं तो डेबिट क्या करते हैं? एसेट्स. सो करेक्ट एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू Messrs. Raw. नाम दिया हुआ है, कैश का वर्ड यूज नहीं है. तो एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू Messrs. Raw. कितने रुपीस का? 8,000 का. दिस इज अ करेक्ट एंट्री. बट हमसे हुआ क्या? गलती क्या हो गई? हमने उसको इंटर्ट कहां कर दिया? परचेज बुक में. यानी हमें लिखना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट में डेबिट और हमने लिख कहां दिया? परचेज. दिस टाइप्स ऑफ द एरर विल बी नोन एज द प्रिंसिपल एरर. ये किस तरह का एरर था? ये पोस्टिंग एरर था. दिस इज नोन एज द एरर ऑफ पोस्टिंग.
और ये किस तरह का एरर है? दैट इज अ एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एरर है कि आपको डेबिट करना था एसेट्स अकाउंट, बट ड्यू टू द सम ड्यू टू द लोड ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज आपने फर्नीचर की जगह डेबिट क्या कर दिया? परचेज। सो इनकरेक्ट एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू मैसर्स राव, दैट इज 8,000। अब आपको क्या करना है? इस एंट्री को रेक्टिफाई करना है, आपको इस एरर को रेक्टिफाई करना है। कैसे रेक्टिफाई करोगे? सर अभी आपने समझाया, जो सही है उसको एज इट इज वैसे ही रहने दो, और जो गलत है उस एरर को क्या कर दो, उस अकाउंट को क्या कर दो, अपोजिट कर दो। सो वी हैव अ सफिशिएंट स्पेस। सो हम रेक्टिफाई एंट्री क्या पास करेंगे? द रेक्टिफाई एंट्री विल बी ऑफ दिस क्वेश्चन इज गलत क्या है? सर ये सही क्या है? ये यानी जो गलत है, परचेस को गलत है तो उसको खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सर उसको खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करें। सो रेक्टिफाई एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? रेक्टिफाई एंट्री आपकी हो जाएगी दैट इज अ फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो सही है एज इट इज उसको उतार दो, और जो गलत है उसको क्या कर दो? अपोजिट। यानी परचेस क्या है? डेबिट। जो गलत है उसको अपोजिट कर दो, दैट इज परचेस 8,000। So this is your answer of this problem. So the rectify entry will be furniture account debit to purchase amount of 8,000. So you can see that how we rectify this entry. So we solve the second error also. Yes sir, बहुत easy है, अभी तक तो easy है, और easy है भी। एरर को रेक्टिफाई करना आराम से बात है, बट प्रॉब्लम क्या होती है ना कि आप लोग को जनरल उतना अच्छे से क्लियर नहीं होता। So is that's why this chapter is comes after the chapter of journal. जब आप सब कुछ पढ़ लेते हो, like a depreciation, like a you can also study the different provisions and reserve. You will also studied about the bills of exchange, bank reconciliation statement, यानी आपने बहुत बड़े बड़े चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब आप पार्ट ए का 11 के पार्ट ए का लास्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हो लगभग। सो रेक्टिफिकेशन, एरर का रेक्टिफिकेशन आप तभी कर पाओगे जब यू हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट दी जर्नल एंट्रीज। तो ये जर्नल एंट्रीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि कैसे हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। सो नाउ वी विल मूव टू द थर्ड एरर। हम लोग थर्ड एरर पे चलते हैं। यस सर, थर्ड एरर। द थर्ड एरर विल बी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड एरर, कैश सेल्स टू रजनी ₹5,000 रिकॉर्डेड इन परचेस बुक। आपने सेल किया रजनी को। किसको सेल किया? रजनी को। और आपने उसको रिकॉर्ड कहां कर लिया? परचेस बुक में। सर ये गलत हो गया। यानी यहां आप देखो तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? द करेक्ट एंट्री विल बी दैट इज अ परचेस, दैट इज अ सेल्स अकाउंट, that is a the correct entry will be a cash sales to Rajni. So the entry will be Rajni account debit to sales. Rajni account debit to sales. This is a correct entry of 5,000. 5,000 रुपए में आपने गुड्स को सेल्ड किया। बट आपसे गलती क्या हो गई? गलती ये हो गई कि आपने उसको रिकॉर्ड कहां कर लिया? परचेज बुक में। जब आपने उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया, सो यू विल फाइंड द एंट्री दैट इज परचेज अकाउंट डेबिट टू रजनी 5,000। अब यहां आप देखो, अभी तक अलग अलग अकाउंट में एक एक मिस्टेक हो रही थी, यहां दो से अधिक अकाउंट में मिस्टेक्स हुई। आप देखो, रजनी डेबिट हुई है, सेल्स क्रेडिट हुआ है, और यहाँ परचेज डेबिट हुआ है, रजनी क्रेडिट हुई है। बहुत ही केयरफुली देखना है। दैट्स व्हाई आई विल सेलेक्ट दिस प्रॉब्लम ऑल्सो। मैं टिक लगा दे रहा हूं क्योंकि मुझे अभी से पता है कि आपको ये इसका सॉल्यूशन पता चल जाएगा और ये आपको बहुत ईजी लगेगा। सो मैंने आपको क्या बताया है? मैंने आपको ये समझाया है कि जब आप करेक्ट और इनकरेक्ट एंट्री पास कर लो, तो जो सही है उसको एज इट इज उतार दो, और जो गलत है उसको रिवर्स कर दो। यहाँ पे तो गलत दोनों ही साइड है। इस क्वेश्चन में बाकी ऊपर के दोनों एरर्स में क्या डिफरेंस है?
इन दोनों ए और बी के एरर में और सी के एरर में बेसिकली डिफरेंस यही है, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि अभी तक जितने एरर आ रहे थे उसमें एक जर्नल एंट्री में सिर्फ एक अकाउंट गड़बड़ हो रहा था। जैसे अगर आप कैश सेल्स टू राधिका देखो, उसको हमने रिसीप्ट्स कॉलम ऑफ द कैश बुक में, तो उसमें कमीशन अकाउंट में गलती हुई थी और वहां सेल्स में गलती हुई थी। यहाँ एरर में क्या हुआ है, रजनी डेबिट हुई होना चाहिए, सेल्स क्रेडिट होना चाहिए, उल्टा हो गया, सेल्स क्रेडिट भी नहीं हुआ, उसकी जगह परचेज डेबिट हो गया और रजनी को होना चाहिए था डेबिट, हो गई क्रेडिट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम है। इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मेरा एक प्रिंसिपल याद रखो, व्हेन वी रेक्टिफाई द टू साइडेड एरर, जब हम टू साइडेड एरर को रेक्टिफाई करते हैं तो बेसिकली आपके माइंड में ये चीज रहनी चाहिए, इज दैट जो सही है एज इट इज उतार दो, जो गलत है उसको रिवर्स कर दो। सही क्या है? सो द करेक्ट एंट्री विल बी रजनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो एज इट इज उसको कॉपी कर लो, यहाँ स्पेस आपको दिख रहा है प्रॉपरली। सो मैंने क्या किया, रेक्टिफाइड एंट्री के लिए रजनी को डेबिट कर दिया और सेल्स को क्रेडिट कर दिया। सर क्लियर हो गया? कितना अमाउंट है? 5000। और गलत क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू रजनी। गलत क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू रजनी। इसको अपोजिट कर दो, यानी परचेज को क्रेडिट और रजनी को डेबिट। अब you can see that the rectified entry will be Rajani account debit 5000, Rajani account debit 5000, to sales 5000, to purchase 5000. But you know very well, जब दो similar account debit ही हुए हैं, दोनों डेबिट हुए हैं, तो क्यों ना हम दोनों को मर्ज कर दें, यानी 5 और 5 प्लस कितना हो जाएगा? 10,000। यानी ऊपर के रजनी की कोई जरूरत हमको अब नहीं है, मैंने रजनी अकाउंट को आपस में क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। सो द रेक्टिफाइड एंट्री विल बी ऑफ दिस एरर, the rectified entry of this error will be Rajani account debit to sales to purchase. So this is the basic rectification of the entry. As you can see that in this question, in this situation you can see that the first will be the example of the error of posting, second one is the error of principal, and third one is a cash sales to Rajani rupees recorded in the purchase book. This is a also the error of posting. ये also किसका error है? Error of posting का है। इसमें भी आपने posting गलत कर दी, करना चाहिए था सेल्स बुक में, लिख कहाँ दिया? परचेस बुक में। So this is a question and you can see that how we solve this question. Now let's we take one more example for your clarification, for your knowledge. Okay, so let's we take one more example. So now we will move to the next question of rectification of error. So you can see that on your screen there are basically 4 error. The first error is credit sales to Mohan rupees 7,000 recorded at 700. The number second, credit purchase from Rohan rupees 9,000 were not recorded. Number third, sales to W rupees 10,000 debited to Jez account as rupees 1,000. And number 4 is salary paid rupees 5,000 was debited to employee account. So now one by one we pass the rectification entries. In the first situation, you can see that on your screen, we sold the credit, we sold the goods to on credit basis to Mohan. The amount will be 7,000, but we record only as 700. So in this first situation, आप अगर केयरफुली देखो कि आपको रिकॉर्ड कितना करना चाहिए था 7,000, लेकिन आपने रिकॉर्ड कितना किया? ओनली 700। आपने सिर्फ 700 रिकॉर्ड किया। सो कितना अभी आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, यानी आपने अंडरकास्ट कर दिया। इन दिस सिचुएशन आपने कितना अंडरकास्ट कर दिया? दैट इज 6,300। हाउ? 7,000 माइनस 6,700। सो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि हमने गुड्स सोल्ड किया मोहन को 7,000 रुपये का, लेकिन रिकॉर्ड किया है कितना? 700। इसका मतलब मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना रुपए कम रिकॉर्ड किया है? 6,300। सो अगेन वी पास द जर्नल एंट्री
that is Mohan account debit to sales by 6300, यानी 6300 हम एक और एंट्री पास कर देंगे ताकि हमारा जो वैल्यू 700 है उसमें 6300 और ऐड हो जाए और नाउ वेरी वैल्यू कितनी से हो जाए 7000 से। नंबर सेकंड, यू कैन सी दैट द नंबर सेकंड विल बी अ credit purchase from Rohan rupees 9000 were not recorded. This error will be known as the error of omission. Error of omission. आप यहाँ पर अगर केयरफुली देखो तो यू विल फाइंड दैट कि हमने क्रेडिट परचेस किया रोहन से 9000 रुपए का, लेकिन उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। सो यू नो वेरी वेल इन दिस सिचुएशन वी पास द जर्नल एंट्री। हम क्या करेंगे, सीधे सीधे जर्नल एंट्री पास कर देंगे, दैट इज अ परचेज अकाउंट debit to Rohan because this is an error of omission. So you can see that अगर हम अंडरकास्ट कर दें तो सेम एंट्री पास होती है और डिफरेंस अमाउंट से, और अगर ये ओवरकास्ट कर देते 7000 की जगह लिख देते 70000, तो जितना ज्यादा मैं लिखता उससे ये एंट्री रिवर्स हो जाती। सो इन बेसिकली अगर अंडरकास्ट रिकॉर्डिंग होता है तो सेम एंट्री पास होती है डिफरेंस अमाउंट से, और अगर ओवरकास्टिंग होता है तो रिवर्स एंट्री होती है डिफरेंस अमाउंट से। और जब हम एरर ऑफ ओमिशन करते हैं यानी रिकॉर्ड ही करना भूल जाते हैं, बेसिकली कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो उस सिचुएशन में वी पास द जर्नल एंट्री same as it is the given in the question, that is credit purchase from Rohan. So the journal entry will be purchase account debit to Rohan 9009. Now we will move to the third error, and you can see that in the third error, sales to W rupees 10,000 debited to Jet's account as 1000. आपने सेल किसको किया, W को, so the entry will be W account debit to sales. This is a correct entry, that is 10,000. But by mistake आपने उसे किस अकाउंट में डेबिट कर दिया, डेबिटेड टू जेट्स अकाउंट। आपने उसको W अकाउंट में डेबिट नहीं किया, किस अकाउंट में डेबिट कर दिया, जेट्स अकाउंट में डेबिट कर दिया। कितने से, 1000 से। सो मैंने आपको एकदम क्लियरफुली बताया था कि इस सिचुएशन में जब आपको राइट और रॉन्ग के बारे में सोचना पड़ जाए, सो उस सिचुएशन में अगर मैं बात करूं, what is the correct entry? The correct entry is this. What is incorrect entry? The incorrect entry is this. So correct entry को हम same as it is उतार लेते हैं, और incorrect को हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं। So अगर आप यहाँ देखो तो आपने सेल्स किया W को 10,000 का, लेकिन उसे डेबिट कर दिया जेट के अकाउंट में कितने से, 1000 रुपए से। So in this situation you will pass a journal entry that is correct amount will be a W account को आप डेबिट कर दोगे 10,000 से, ओके, बट उसको जेट अकाउंट में कितने से डेबिट कर दिया, 10,000 से। सो आप जो गलत है उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट, ये 1000 हुआ, दिस इज अ 10,000। आई विल अगेन दिस रेक्टिफाई दिस क्वेश्चन कि गलती क्या हुई होगी कि आपने सेल किया W को 10,000 का, लेकिन उसे डेबिट कर दिया जेट के अकाउंट में 10,000 से। यानी करेक्ट क्या है, W को डेबिट करना चाहिए था 10,000 रुपए से, लेकिन हमने डेबिट किसको कर दिया, जेट को डेबिट कर दिया 10,000 से। सो करेक्ट इज W, तो W को डेबिट कर दिया। रॉन्ग क्या है आपका, जेट रॉन्ग है, जेट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड प्रॉब्लम, थर्ड एरर। नाउ वी विल मूव टू द फोर्थ एरर। इन द फोर्थ एरर यू कैन सी दैट सैलरी पेड रुपीज 5,000 वॉज डेबिटेड टू एम्प्लॉइज अकाउंट। हमने सैलरी पे किया, किसको सैलरी पे किया, we paid the salary of 5,000. So the entry, the correct entry will be a salary account debit to cash, and the amount is 5,000. 5,000. हमने सैलरी पे किया 5,000 रुपए। So in this situation the journal entry will be salary account debit to cash, but it was debited to एम्प्लॉयज अकाउंट, यानी इसको मैंने डेबिट कहाँ कर दिया, एम्प्लॉयज अकाउंट में। यानी गलती क्या कर दी, गलती ये कर दिया कि हमने सैलरी अकाउंट की जगह कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया, दैट इज एम्प्लॉय अकाउंट। द अमाउंट विल बी 5,000. सो यू कैन सी दैट
इसका रेक्टिफिकेशन कैसे होगा इन दिस सिचुएशन? द रेक्टिफिकेशन विल बी बेस्ड ऑन द राइट एंट्री इज सैलरी डेबिट, बट हमने डेबिट क्या कर दिया एम्प्लॉयज को. सो यू नो वेरी वेल, जो सही होता है उसको एज इट इज उतार दो. सही क्या है? सैलरी अकाउंट. गलत क्या है? एम्प्लॉयज अकाउंट. So the rectification entry will be salary account debit to employees account, that is a 5,000 and 5,000. So you can see that we solve all the 4 errors and we pass the rectification entry, all those related to all those errors. So the first error we will rectify by the Mohan account debit to sales 6,300, and the second error which are rectified by the passing the journal entry, that is purchase account debit to Rohan. The third error will be rectified by the entries, that is W account debit to Jet 10,000. And again the number 4 error will be rectified by the fourth journal entry. The journal entry will be salary account debit to employees account. So you can see that in today's video of class 11 we discussed the first type of the error, that is a two-sided error. In this situation you can see that there are basically 2 types of the error find out under the books of account. The first error, that is a two-sided error, and second types of the error, that is a one-sided error. Two-sided error are those error which are occurred in the both side, that is the debit side as well as the credit side. अगर आप देखो ये सारे error two-sided हैं, तभी तो उसको rectify करने के लिए हमें दो अकाउंट का यूज करना पड़ रहा है. You can see that इसमें 2 अकाउंट में रेक्टिफाई किया गया, इसमें भी दोनों अकाउंट में रेक्टिफाई किया गया, इसमें भी दोनों अकाउंट में रेक्टिफाई किया, तभी तो जर्नल एंट्री की हेल्प ली जा रही है. सो इन द टू साइडेड एरर वी अफेक्ट 2 अकाउंट्स बिकॉज टू साइडेड एरर एट लीस्ट अफेक्ट मिनिमम 2 अकाउंट. यानी टू साइडेड एरर जो होता है वो कम से कम 2 अकाउंट को अफेक्ट करता है बेसिकली अगर हम बात करें. इसीलिए हम इस टाइप के एरर को पास ऑन करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं. Number second and very important part of this type of the error, that is the two-sided error, are those type of the error which do not affect the tribals, यानी जो tribals को affect नहीं करता है. So you can see that there are basically 4 types of the error in your screen. The first error is credit sales to Mohan rupees 7,000 recorded as 700, so this is the error of posting. Credit purchase from Rohan 9,000 were not recorded, error of omission. Sales to W rupees 10,000 debited to Jet account as rupees 10,000, this is also known as an error of posting. And salary paid rupees 5,000 were debited to employees account, this is a principal error. क्योंकि आपको पता है कि जब आप सैलरी पे कर रहे हो एम्प्लॉयज को पे कर रहे हो, तो यू नो वेरी वेल एम्प्लॉय को तो आप पे करोगे ही सैलरी, बट सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट. सो इन दिस सिचुएशन जब नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट का कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो नॉमिनल अकाउंट को हम लोग प्रेफर करते हैं. सो दैट्स व्हाई we debited the salary account instead of the employees account. So I hope today we cleared the very important part of the 10th chapter, that is the rectification of error. In this chapter, first of all, we discussed the first types of the error, that is a two-sided error. And in this types of the error, when we rectify such types of error, in this situation we pass the journal entry, as you can see that, and all the journal entry will be passed in a proper format. The format is date, particular, LF, amount debit and amount credit. So all the entries will be passed in the proper format. आपको जब भी ये कोई एंट्रीज पास करनी है तो प्रॉपर फॉर्मेट में पास करनी है. फॉर्मेट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, नीट होना चाहिए, विथ नरेशन. अगर हम नरेशन की बात करें तो यहाँ का नरेशन होगा बिंग एरर रेक्टिफाइड, बिंग एरर रेक्टिफाइड, बिंग एरर रेक्टिफाइड, बिंग एरर रेक्टिफाइड. अगर आप ज़्यादा इंप्रेसिव नरेशन रखना चाहते हैं तो यू विल यूज द sentence, that is being error rectified, the undercasting amount of rupees 6,300. In this situation we rectify the error of the omission. Number third हम यहाँ पे लिख सकते हैं we rectified the error of posting, we rectified the error of principal. So आपको properly journal entry pass करनी है with a proper format, with a suitable narration, which are totally depend on you. But the fact is that कि टू साइडेड एरर को रेक्टिफाई करने के लिए एक प्रॉपर तरीका होता है, जिसमें एक तरीका ये है कि जब हम करेक्ट एंट्री है उसको एज इट इज सेम पेस्ट कर देना है, और जो रॉन्ग एंट्री है उसको जस्ट रिवर्स कर देना है. सो एट लास्ट आई वांट टू से समथिंग विथ यू. प्लीज सॉल्व ऑल द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम गिवन इन योर बुक, एंड
also is our request. So please solve all the practical problem in your book, as well as please solve all the illustration which are given in your book. So I hope today we cleared all the topics and doubts very easily. Apart from this, if you have any doubts or suggestion regarding this video, please ask me in the online classes as well in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot, and take care. Good night.